Good morning, students. Have a nice day. I hope you all are safe and sound. So, students, in our last class, we have just discussed about comparing quantities. It means we have just started the chapter comparing quantities and discussed the exercise one. So, today we are going to discuss about uh, exercise uh, 9.2, that is percentage, about percentage. So what is percentage, what is the use of percentage, what is the meaning, actual meaning of percentage? So let us discuss. So students, here you can see the title of the chapter is percentage. So first of all, let us learn what is percentage. So percentage are the numerators of fractions with denominator 100. मतलब क्या है, परसेंटेज जो भी बोला गया होगा वो न्यूमरेटर्स में रहेगा और उसका डिनोमिनेटर क्या होगा 100. So per cent, you know cent means what? Cent means 100, per 100, and the symbol of percentage is this. This one is the symbol of percentage. So 1% means 1 out of 100. मतलब यहाँ न्यूमरेटर में 1 रहेगा और डिनोमिनेटर में 100. So you can write 1% as 1 by 100. Here in the numerator part that is 1 and the denominator part it is 100. मतलब percentage of the numerators of fraction with denominators 100. 100 में denominator part में रहेगा. So in this way 5% will be equal to 5 by 100. 5 numerator में रहेगा, denominator में 100. 90% will be equal to 90 by 100. Right now, so in this way you can express the percentage into fraction. Right now, so next thing is कन्वर्सन ऑफ फ्रैक्शन नंबर टू परसेंट. तो फ्रैक्शन को हम कैसे परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं, या हाउ कैन वी कन्वर्ट द फ्रैक्शंस नंबर टू परसेंटेज. राइट ना, तो जस्ट मल्टीप्लाई द फ्रैक्शन बाय 100, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू परसेंटेज. जो भी फ्रैक्शन दिया गया होगा उसके साथ हमें सिर्फ 100 मल्टीप्लाई करना है, देन आफ्टर इट विल बी कन्वर्टेड इनटू परसेंटेज. राइट ना, सो लेट अस ट्राई. So here it is written 3 by 4. So we have to convert it into percentage. How many percentage it will be? तो कैसे करेंगे? 3 by 4 into 100. So students, you know 4 and 100 will be cancelled and divide कर सकते हैं. जैसे कि 4 2 is 8, 2 left, 20, 4 5 is 20. Here we will get 25. So now 3 into 25 and we will get 3 5 is 15, 5 carry over 1, 3 2 is 6, 6 plus 1 7, 75%. So 3 by 4 can be converted into 75% right now by multiplying just 100. So in this way we can convert another fractions also. जैसे कि यहाँ दिया है 9 by 10 दिया है, इसको हमें परसेंटेज करना है just multiplying 100. So 9 by 10 को हम क्या करेंगे परसेंटेज करने के लिए 9 by 10 into 100. So here 10 ones are 10, 10 tens are 100. So 9 into 10 it will be 9 tens are 90%. ये हो गया 90%. ठीक है. So here is a word problem based on that. Out of 35 students, sorry 32 students, 8 are absent. Then what percent of students are absent? So हमें देखो निकालना है कि total number of students, here total number of students is equal to 32. Absentees कितने हैं? Absent हैं 8. ठीक है. Then what percent of students are absent? कितने परसेंट स्टूडेंट एबसेंट है पूछा गया. कितना एबसेंट है बोलने से तो 8 एबसेंट है. कितना परसेंट स्टूडेंट एबसेंट है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस फाइंड द फ्रैक्शन. पहले हमें फ्रैक्शन निकाल लेते हैं, फ्रैक्शन के बाद हम परसेंटेज निकालेंगे. फ्रैक्शन क्या है? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर 32, आउट ऑफ देम 8 आर एबसेंट. सो हियर द फ्रैक्शन इज 8 by 32. So if we cancel the numerator and denominator by 8, then we will get 8 ones are 8, 8 fours are 32. तो यहाँ 1 by 4 फ्रैक्शन आर एबसेंट, 1 by 4 फ्रैक्शंस इज एबसेंट. तो परसेंटेज कितना होगा? यू नो हाउ टू कन्वर्ट द फ्रैक्शंस इनटू परसेंटेज, जस्ट मल्टीप्लाइंग बाय 100. सो हियर 4 ones are 4, it will you will get 25. So 25% of students are absent. 25% स्टूडेंट्स क्या हैं? एबसेंट है. राइट ना. कितना प्रेजेंट है बोल के अगर क्वेश्चन पूछा गया होता तो कैसे करते? जस्ट बाय पहले तो 32 से 8 माइनस कर देते एंड यू विल गेट 24. 24 मिल जाता. फिर 24 तो हमें कैसे निकालना पड़ता है? 24 को पहले फ्रैक्शन में 24 by 32 कर लेते. तो ये कितना होता? 8 3 is
8 4 3/4 मिलता है, 3/4 को फिर 100 में मल्टीप्लाई करके 75% मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर आर 120 वोटर्स। एक गांव में कितने वोटर्स हैं? 120 वोटर्स हैं और 9 ऑफ देम वोटेड यस। तो उनमें से 90 पर्सन क्या किए? यस किए, वोट यस किए। देन व्हाट परसेंट वोटेड यस, कितने लोग यस किए वोट बोल के। तो हमें पहले फर्स्ट ऑफ ऑल परसेंटेज निकालना है। टोटल नंबर ऑफ वोटर्स कितना है? टोटल नंबर ऑफ वोटर्स 120 है। यस कितने लोग किए हैं? 90। तो फ्रैक्शन क्या हुआ? फ्रैक्शन इज इक्वल टू 90 बाय total number of voters. So 0 and 0 will be cancelled. Next 3 3 are 9, 3 4 are 12, 3/4. Now you can easily convert 3/4 into percentage by multiplying 100. 100 multiply करोगे, 4 में cancel होगा, 4 1s are 4, 4 2s are 8, 4 5s are 20. Yeah, you will get 25. So 3 into 25 will be 75%. So 75% of people voted yes. Right now, so in this way students you can solve this kind of question. Right now let us discuss another kind of question. So students here you can see it is written here conversion of decimal to percentage. तो डेसिमल को हम परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे? डेसिमल नंबर में दिया गया होगा तो उसको परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो हियर द स्टेप्स। फर्स्ट ऑफ ऑल कन्वर्ट द डेसिमल नंबर इनटू फ्रैक्शन। पहले डेसिमल को क्या करना है? फ्रैक्शन करना है। और तुम्हें पता है लास्ट टाइम हम लोग डेसिमल्स के ऊपर पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। डेसिमल नंबर एंड फ्रैक्शन के ऊपर ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। डेसिमल्स को कैसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, यू हैव बेटर नोन अबाउट इट। नेक्स्ट, पहले अगर डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं देन क्या करना है? कन्वर्ट द फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज बाय मल्टीप्लाइंग 100। और तुम्हें अभी बताया गया है कि फ्रैक्शन को कैसे परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं, जस्ट मल्टीप्लाइंग बाय 100। राइट। सो 0.2 लिखा हुआ है, 0.2। तो स्टेप्स के हिसाब से फर्स्ट इसको क्या करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल कन्वर्ट द डेसिमल नंबर इनटू फ्रैक्शन। तो वी हैव टू कन्वर्ट 0.2 इनटू फ्रैक्शन। सो 0.2 विल बी 2/10 बिकॉज आफ्टर द डेसिमल पॉइंट 1 डिजिट देयर। सो एक में एक ही जीरो लगाएंगे। सो ये हो जाएगा 2/10। और तुम्हें पता है 2/10 को कैसे परसेंटेज करते हैं? 2/10 इंटू 100 मल्टीप्लाई करेंगे, 0 and 0 विल बी कैंसिल, 10 2s हियर यू विल गेट 20%। राइट। सो 0.75 फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस कन्वर्ट इनटू फ्रैक्शन। 0.75 विल बी 75/100 बिकॉज डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट है इसलिए एक में 2 जीरो दिए यहाँ। नेक्स्ट 75/100 को हम अगर रिड्यूस कर देते हैं देन विल गेट, रिड्यूस नहीं करने से भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 75/100 फ्रैक्शन है, इसको हमें परसेंटेज करना है। तो जस्ट मल्टीप्लाइंग बाय 100, 100 and 100 विल बी कैंसिल, देन यू विल गेट 75%। नेक्स्ट इट इज रिटन हियर 2.1। 2.1 को हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। सो कैसे करेंगे? पहले 2.1 को फ्रैक्शन करते हैं 21/10 बिकॉज डेसिमल पॉइंट के बाद एक डिजिट दिया गया, एक में एक 2 जीरो दिए। नेक्स्ट 21/10 इंटू 100। सो हियर 0 and 0 विल बी कैंसिल। सो 21 10s 210%, you will get 210%। right now, so next thing is conversion of परसेंटेज टू फ्रैक्शन और डेसिमल। तो परसेंटेज में दिया गया है उसको कैसे हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। इट इज़ वेरी इजी स्टूडेंट्स। देखो 5% को कैसे लिखा जा सकता है? 5/100, 5/100। सो यू नो 5/100 को डेसिमल में रिप्रेजेंट करना बहुत ईजी है। एक में कितना जीरो लगा हुआ है? 2 ठो। तो डेसिमल पॉइंट अभी यहाँ है, 2 ठो प्लस लेफ्ट साइड लेफ्ट शिफ्टेड होगा। सो यू विल गेट 0.05 डेसिमल्स हो गया। नेक्स्ट 65% लिखा हुआ है, 65% को पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। 65/100 ये फ्रैक्शन हो गया। इसको अगर डेसिमल करते हैं तो एक में 2 ठो जीरो लगा हुआ है, डेसिमल प्लसेस 2 ठो पीछे जाएगा तो 0.65। नेक्स्ट 125% लिखा है, 125/100 करेंगे तो फ्रैक्शन में मिल गया। फ्रैक्शंस को अगर फिर डेसिमल करना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा? 2 ठो जीरो लगाया हुआ है, 2 ठो डिजिट पीछे जाएगा तो 1.25 ऐसे करके डेसिमल कर सकते हैं। नेक्स्ट थिंग इज हियर इट इज रिटन 35% प्लस डेक्स परसेंट इज इक्वल टू 100%। तो 35% में कितना परसेंट प्लस करने से 100 होगा? इट इज़ वेरी इजी, जस्ट सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम 100%। 100 माइनस 35 कर देंगे, 10 minus 5 it will be 5 and 9 minus 3 it will be 6, 65। here you will get 65। 65% ऐड करने से 100% होगा। 64% प्लस 20% प्लस डेक्स परसेंट इक्वल टू 100। तो पहले ये दोनों को प्लस करते हैं देन 100 से माइनस करते हैं। 64 प्लस 20 you will get 84%।
तो 84% में कितना परसेंट प्लस करने से 100% होगा, जस्ट सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम 100, सो 100 minus 84. Here 10 minus 4 it will be 6 and 9 minus 8 it will be 1, just 16%. Here the answer will be 16%. So out of 100% अगर 16% ये दोनों में प्लस कर देते हैं then you will get 100%. Here the next question is if 65% of students in a class have a bicycle then what percent of students do not have bicycle. तो एक क्लास में जितने स्टूडेंट्स हैं कुल मिला के टोटल स्टूडेंट्स में से 65% स्टूडेंट के पास बाईसाइकिल है, साइकिल है, तो कितने परसेंट स्टूडेंट्स के पास नहीं है साइकिल, ये हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो 65% स्टूडेंट के पास है तो कितने परसेंट है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इक्वल टू 100% लेते हैं। लेट टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इक्वल टू 100%। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को 100% लेते हैं, तो उनमें से 65% के पास बाईसाइकिल है बाईसाइकिल equal to 65%, then do not have bicycle is equal to 100%, that is total number of students, minus have bicycle, that is 65% of students, and you will get 10 minus 5 it will be 5, 9 minus 6 it will be 3, 35% स्टूडेंट के पास बाईसाइकिल नहीं है। ऐसे करके तुम काउंट कर सकते हो, इस टाइप ऑफ नंबर का सॉल्व कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स लेट अस डिस्कस अनदर काइंड ऑफ क्वेश्चन। हियर another type of question is given here. So converting percentage to how many, परसेंटेज को कैसे हाउ मेनी में कन्वर्ट करें, हाउ मेनी मतलब क्या एक्चुअली, इसके बारे में डिटेल्स में डिस्कस करते हैं। एक्चुअली फाइंड 50% ऑफ 164, एक नंबर दिया गया है 164, इसका 50% कितना है हमें निकालना है। एक नंबर दिया गया है 164, तो इसका 50% कितना होगा हमें निकालना है, राइट। सो यू नो 50% का मतलब क्या है, 50% मीन्स 50/100, यू नो 50% मीन्स 50/100। एंड हियर जो वर्ड ऑफ है, ऑफ मीन्स मल्टीप्लीकेशन, और मतलब क्या होता है मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। सो 50% ऑफ 164 कैन बी रिटन एज 50% is written as 50/100. Here of means multiplication and the number is 164. Now you can cancel these two numbers, 0 and 0 will be cancelled. Here 5 1s are 5, 5 2s are 10, then you will get 164/2. Here you can divide, 2 1s are 2, here 2 8s are 16, 2 2s are 4, 82, कितना मिलेगा 82. So 50% of 164 is 82. Here the answer is 82, right now. So next thing is we have to find 75% of 12. तो कैसे लिख सकते हैं इसको, 75% can be written as 75/100. Here of means multiplication and 12. So here 25 में कैंसिल हो सकता है, 25 3s are 75, 25 4s are 100. So 3/4 into 12. So here 4 1s are 4, 4 3s are 12, 3 3s are 9, आंसर है 9. So 75% of 12 is 9. So 12 का 75% कितना है 9 है. So let us discuss another kind of question, that is already written, mixed fraction लिखा हुआ है, 12 whole 1/2% of 64. तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, the mixed fraction can be converted into improper fraction, then we'll find the answer. So 12 whole 1/2, इसका मतलब क्या है, 12 2 is 24, 24 plus 1 25/2, right now 25/2% of 64. Then we can write 25/2% can be written as 25/2 divided by 100. 100 में डिवाइड करते हैं इसको, of means multiplication into 64. Now the fraction will be 25/2 लिखा हुआ है, 100 के नीचे 1 है, इसको अगर डिवीजन को अगर मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करते हैं तो ये हो जाएगा 1/100 into 64, राइट। हियर 25 4s are 25, 25 4s are 100, 2 में कैंसिल करते हैं, 2 1s are 2, 2 3 are 6, 2 2s are 4, next you will get 32/4 and it can be reduced as 4 1s are 4, 4 8s are 32. So the answer is 8. So 12 whole 1/2% of 64 is 8. Here the answer is 8, right now. So next thing is here what a problem is given. If 25% of a number is 9, then find the whole number. Find the number. Actually it is the converse of the first number. 25% of a number, एक नंबर का 25% दिया हुआ है, that is 9 है, कोई भी एक नंबर का 25% 9 है,
तो पूरा नंबर कितना है, पूरा होल नंबर कितना है? सो 25% इज इक्वल टू 9, 25% इज इक्वल टू 9, देन 1% इज इक्वल टू 9/25। 1% का कितना होगा? 9/25 हो रहा है। सो पूरा नंबर को हम कितना लेते हैं? 100%। सो 100% इज इक्वल टू 9/25 इंटू 100, 9/25 into 100. So 25 ones are 25, 25 fours are 100. Here you will get 9 fours are 36. The whole number is 36. In this way you can find the answer. Here the question is 75% of what number is 15? तो कौन सी नंबर का 75% कितना होगा? 15 होगा. So you can write here, कोई भी नंबर का हो 75% ऑफ, मान लो वो नंबर हमें नहीं पता, p लेते हैं, 75% ऑफ p इज इक्वल टू 15, then 1% of p is equal to 15/75 हो गया. then 100% of p, that is पूरा p, 100% of p is equal to 15/75 into 100, राइट ना. सो हमें अभी क्या करना है? 25 में कैंसिल कर सकते हैं. 25 3 are 75, 25 4 are 100, 3 1s are 3, 3 5s are 15. here you will get 5 4s are 20. तो द आंसर इज 20. 20 जो है नंबर, उसका 75% कितना होगा? 15 होगा, राइट ना. सो लेट अस डिस्कस अ वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड ऑन दैट. सो 8% ऑफ चिल्ड्रंस ऑफ ए क्लास 25, sorry, 8% children of a class of 25 like getting wet in the rain. then how many students like getting wet in the rain? तो यहाँ बोला गया है कि कोई भी क्लास में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं 25 है. 8% चिल्ड्रन ऑफ ए क्लास ऑफ 25 गेटिंग वेट इन द रेन, वो कितना, वो भीगना पसंद करते हैं. एक क्लास में टोटल 25 स्टूडेंट्स हैं, उनमें से 8 स्टूडेंट क्या करते हैं? बारिश में भीगना पसंद करते हैं, ठीक है. देन हाउ मेनी चिल्ड्रंस लाइक गेटिंग वेट इन द रेन? कितना स्टूडेंट्स बारिश में भीगना पसंद करते हैं? तो वी हैव टू फाइंड 8% ऑफ 25, 8% ऑफ 25, राइट नाउ. सो 8% ऑफ चिल्ड्रंस ऑफ 25, सो 8% ऑफ 25, you will get, you can write here 8% can be written as 8/100 of means multiplication 25. So 25 ones are 25, 25 fours are 100. now you will get 8/4 and 4 ones are 5, 4 twos are 8, 2. only two students दो स्टूडेंट जो हैं वो बारिश में भीगना पसंद करते हैं. 2 students like getting wet in the rain. So students, in this way you can find the answer of this kind of question. For today this much, and our next class we will discuss about the next exercise. Thank you.